Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. We are on the topic of depreciation. Just we have to study or we have to learn yesterday the diminishing balance method. In your textbook, question number 15 given, and through the question, through the video, you can deserve the fact and whatever the information given in the question. So now dear children, just see question number 15 I am going to read. Ashoka Limited bought a machine on 1st April 2010. First you have to deserve the information, pay your kind notice towards the date and time given. So remember, through the date for 2 lakh rupees 40,000 and spent rupees 4,000 on its carriage and rupees 6,000 towards installation cost. जो मशीन खरीदी जा रही है उसका लागत 2,40,000 है और उसके बाद उस पर 4,000 रुपए का किराया उसको ढुलाई अपने नियत स्थान पर लाने के लिए और 6,000 रुपए उसको लगवाने में खर्च होता है। तो मशीन की कास्ट हो जाएगी 2,40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 2,50,000। On 1st July, step by step, just you have to solve. First you have to draw the line of, we have to prepare the account, whatever the years given. Machinery account for 3 years, books are closed yearly on 31st March. This one is the question given. 31st March means assessment year. So first we have to draw the line of machinery account this way. Now you can see middle of the line, you have to draw the middle line. And then after the amount column, just this one is the amount column and this one is the date column. डेट पर विशेष ध्यान देना होता है, उसी के अनुसार आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बेटा। और डेट पर स्पेशल इफेक्ट होना चाहिए, कब मशीन को खरीद रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। जस्ट ऑन टॉप यू कैन राइट द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। देन आफ्टर दिस वन इज द डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, amount, date, particulars, amount, debit and credit. And now you can see in the information that is given the date of the this machine 1st April 2010. 1st April 2010 means 1, 4 and 10. You have to purchase the machine. You bought the machine on machine number 1st. Just 2,50,000. 2,40,000 की मशीन है, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन और कैरेज पर खर्च हुए, तो मशीन की लागत 2,50,000 हो गई। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2011, फिर 1 जुलाई 2011 को, तो 1 जुलाई मीन्स 1 जुलाई 2011 को होगा, तब इसका मतलब दूसरे साल में 31 मार्च तक ये साल खत्म हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 31st 3 and 11 बाय डेप्रिसिएशन। अब चार्ज करेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन
पहली मशीन का डेप्रिसिएशन होगा जो वो होगा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज गिवन 15%. So now 15%, 2,50,000, 2,50,000 into 15 upon 100. Just this one is the depreciation 0 0 15 25 75 को 5 15 दूनी 30 37 37,500 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन. अब बैलेंस कर लें इसे बाय बैलेंस 2,50,000. Just this way you can write over here 2,50,000. 500 2,12,500. नेक्स्ट ईयर आप आएंगे 1,4,11 टू बैलेंस. फर्स्ट मशीन का बैलेंस है तुम्हारा 2,12,500. अब एक मशीन और खरीद रहे हैं इस साल. वो मशीन है आपकी, देखेंगे कि on 1st July 2011 it purchased a second hand machinery for 75,000 and spent 25,000 on its overhauling. मतलब 75,000 की मशीन खरीदी गई, 25,000 ओवरहालिंग पर लगा, तो 1,00,000 रुपए कास्ट हो गई इसकी. तो यहां पर लिखेंगे 1,711 टू बैंक सेकेंड मशीन जो खरीदा आपने, टू बैंक सेकेंड मशीन, ये हो गई 1,00,000 की. डेप्रिसिएशन का मेथड जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. सेम डेट कंपनी बॉट अदर मशीन, जो मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो आप डेप्रिसिएशन अब चार्ज करेंगे. ऑन 1st जनवरी इट्स ओवरऑलिंग ऑन 1st January 2013. 1st January 2000 it decided to sell the machinery bought on 1st April 2010 at a loss of rupees 20,000. Okay my dear, now come to the point. Just you have to charge the depreciation 11,331,12 by depreciation. आपका डेप्रिसिएशन हो गया. फर्स्ट मशीन का होगा बेटा, आप क्या करेंगे, 2,12,500 पर 15% हम निकालेंगे. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 2,12,500 गुणे 15/100. 2 0 कैंसिल हो गया. 15 25 75 को 5 15 दूनी 30 7 37 को 7 15 15 18 को 8 15 30 31,875. इसका जो बैलेंस होगा 31,875 प्लस सेकंड मशीन का निकालिए. अब आप सेकंड मशीन का 1,00,000 रुपए है कास्ट, तो 1,00,000 इंटू 15/100. अब यहां पर देखेंगे कि ये जुलाई में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन 9 मंथ का चार्ज होगा. 1st जुलाई को खरीद रहे हैं 9/12. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 4 से कैंसिल कर दीजिए आप, तो 4 2 जा 250 इंटू 15 इंटू 3 0 3750 गुणे 3
इक्वल टू 0, 3 पचे 15 को 5, 3 सत्ते 21, 22 को 2, 3 त्रिका 9, 2 11, 11,250 रुपए। 11,250। अब ये डेप्रिसिएशन दोनों जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 5, 7, 5, 12 को 2, 8, 2, 10, 11 को 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 3, 43,125। आप इसे ऐड कर लें, जोड़ लें, $3,12,500। यहां पर बाई बैलेंस निकाल लीजिए, बाई बैलेंस $3,12,500। 5, 5, 10 को 0, 375। $2,69,375 in next year 1,4,12 टू बैलेंस दोनों मशीन का निकल गया। टू बैलेंस आपका 2,69,375। Now you can see the balance here in next year, in third year, just we are, and then after whatever the information given in the question, on 1st January 2013 it decided to sell the machinery bought on 1st April. First A13 by बैंक कितने में बिक रही है ये मशीन, आप देखेंगे ये बिक रही है आपका 20,000 रुपए में। तो यहां पर 20,000 आपने लिखा। उसके बाद अब इस मशीन का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, 9 महीने का बाई डेप्रिसिएशन। इस मशीन का 9 महीने का चार्ज करेंगे तो फर्स्ट मशीन पर आपका डेप्रिसिएशन जो लगा है 31,875 और इसका बैलेंस 2,12,500 है। तो 2,12,500 में से आप निकालेंगे 2,12,500 से माइनस करेंगे 31,875 रुपए। 31,875, 5, 2, 6, 14 में 8, 0, 11 में 3,008, 1,80,625 का आप 15/100 into 9/12, क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने तक 31 दिसंबर तक मशीन चली है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और उसके बाद इसे छोटे करते चले जाएंगे 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 5 56, 25 गुना 50, 6 62, 25 गुना 50, 12, 25, 125, 4 4
4 4 जा 8 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, 3 5 15 को 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 7 21। इसको आप 8 से डिवाइड 16 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 1 11 में 6 गया 5, 56, 4 8 8 87, 80, 7 75, 25 25 बटे 225 175 5 56 25 चौका 100। अच्छा 15 भी है ना, 3 से मल्टीप्लाई किए, 15 3 45 से करना चाहिए था। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करके इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बेटा इंटू 45 और जो डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख देंगे, फिर इसका लॉस कैलकुलेट करेंगे। 45 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 दूनी 5 में 25 को 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 11, 5 7 35 से 36, 4 5 20 को 0, 4 दूनी 8 2 10 को 0, 4 दूनी 8 1 9, 4 7 28। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 2 1 और 15 को 5, 8 3 11 12 को 2 और 1 3। गलत हो रहा है, क्या करें? 5 5 25 को 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11, 5 7 35 1 36, 4 5 20 को 0, 4 दूनी 8, 2 10 को 0, 4 दूनी 8 9, 4 7 28। नहीं, अब इसके बाद इसे 3,25,125 छोटा करने पर कहाँ है बड़ा, 15 3 45 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 32,000 3,25,125 3,25,125 को 16 से डिवाइड करना है। 3,25,125 को 16 से डिवाइड करेंगे आपका, तो 16 दूनी 32, 5 0 1 48 4 8 11 में 60 गया 3 2 16 दूनी 32, फिर 5 0 1 और 48, मतलब 20,320 रुपए अप्रॉक्स 20,320। अब क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे तीनों का, जो कॉस्ट, इस पर लॉस कितना हुआ, फायदा हुआ कि मुनाफा हुआ। अब तीनों डेप्रिसिएशन जोड़ लेंगे बेटा। मशीन की कॉस्ट की तीनों साल का डेप्रिसिएशन 37,500, उसके बाद आपका 31,875, उसके बाद 20,000 अप्रॉक्स है 320,
ये जोड़ने के बाद डेप्रिसिएशन 7 2 9, 8 5 13, 3 16 को 6, 7 1 8 1 9, 3 3 6 2 8, 89,695 रुपए। इसे माइनस करेंगे 2,50,000 से, 89,695, that will be the book value 5,503,0 1,60,305 रुपए। बाई बैंक जो मशीन बेचे हैं हम, वो कितने में बेचे हैं? 1 अप्रैल 2010 20,000। और कितने में बेचे हैं? तुम्हारा लॉस ऑफ 20,000, लॉस ऑफ 20,000, वो 20,000 ये लॉस है बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हो गया 20,000। तो मशीन को कितने में बेचे हैं हम? ये इतना बेचे लॉस पर, तो यहां से लॉस माइनस करेंगे 20,000, तो हमको मिल जाएगा 1,40,305 रुपीज। यहां पर लिख देंगे 1,40,305 जो मशीन बेचा गया है। नुकसान पर 20,000 के बेचा गया, 20,000 में नहीं बेचा गया। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन को जोड़ने के बाद हमने उसका कॉस्ट निकाल लिया। कॉस्ट निकालने के बाद जो डेप्रिसिएशन है बुक वैल्यू निकाला, और नुकसान पर जब बेचे हैं तो 1,60,305 बुक वैल्यू है हमारा। तो 20,000 के नुकसान पर यदि बेचे हैं हम, तो 20,000 माइनस किए उसमें से, तो हमने मशीन को कितने में बेचा? 1,40,305 रुपए में। और इस तरह से अब और अन्य मशीनों का बैलेंस करके हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन, और मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।